चलो यार, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बाकी लोग किधर है? बस इतने ही आते हैं। व्हाट्स योर नेम? पार्थ। व्हाट अबाउट यू? कनार। हाउ डू स्पेल इट? कनाड। हाँ, कन्नाद। एंड व्हाट अबाउट यू? मंथन। तो और कौन बाकी है? जश। बस चार ही? अच्छा, तो राजू और ये लोग सब नहीं आते क्या? चलो, आरुष इज ऑनलाइन। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलो, पहले सबसे पहले मैथ्स वन में कौन सा लॉजिक्स मैट्रिसेस डन? मैथ्स वन में लॉजिक मैट्रिसेस इज डन, करेक्ट। तो व्हाट इज स्टार्टेड? डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया है सर ने, वो करेंगे अभी। अच्छा, हुआ नहीं है वो लीनियर रिग्रेशन? लीनियर रिग्रेशन हाँ हो गया कंप्लीट। एनीवेज, ठीक है, let's start with the next topic of maths 2. This is a simple and scoring one. Give the heading as index number. Index numbers. चलो, सबसे पहले गिव द हेडिंग एज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट वाइज लिखने का, एंड ये सारे पॉइंट्स तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आएगा, सो यू हैव टू रिवाइज द थियरी ऑल्सो अकॉर्डिंगली। पॉइंट नंबर 1, शुरू करें। लिखो, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर is a statistical measure. Index number is a statistical measure of changes in a variable, of changes in a variable or a group of related variables, or a group of related variables with respect to time, comma, geographical location, or some other characteristics. Geographical locations or some other characteristics such as production, income, etc. फिर पॉइंट नंबर 2, an index number is a single ratio. An index number is a single ratio, comma, usually expressed as percentage. Usually expressed as percentage that measures aggregate
एग्रीगेट, ब्रैकेट में लिखो, और एवरेज, और एवरेज, चेंज इन वेरिएबल्स, change in variables between two different times, comma, places or situations. Two different time, comma, places or situations. Clear? Point number 3. Following are the three main types of index number. Following are the three main types of index number. First, price index number. Underline करो, price index number. लिखो, it measures the changes in level of prices in the economy. Full stop. Continue करो. It compares the price. It compares the price of the current year with respect to base year. To indicate the relative variation. Full stop. Continue करो. It is a good indication of inflation in the economy. It is a good indication of inflation in the economy. Second, quantity index number. Quantity index number. लिखो, it measures changes in the quantities of goods produced, sold, comma, consumed, etc.
in current period with respect to base period, in current period with respect to base period. Clear? It is a very good measure of output of an economy. It is a very good measure of output of an economy. Third, value index number. Value index number. It is the ratio of the aggregate value of the aggregate value of a given commodity, or a group of related commodities. For current period with respect to base period, for current period with respect to base period, full stop. Continue करो. A value index number combines price and quantity by taking the product of price and quantity, by taking the product of price and quantity. Full stop. Continue करो. Hence value means product of price and quantity. Product of price and quantity. चलो क्लियर है. नेक्स्ट हेडिंग नंबर 4 आएगा मेन पॉइंट का. यू राइट इट एज टर्मिनोलॉजीज. उसमें फर्स्ट पॉइंट बेस पीरियड. लिखो. It is the period from which the comparisons are being made. It is indicated by subscript 0,
if nothing is specified, if nothing is specified, then index number for base period is to be taken as 100. Index number for base period is to be taken as 100. Clear? फिर second, current period. Current period. देखो, it is the period for which comparisons are being made. It is the period for which comparisons are being made. It is indicated by subscript 1 or N. क्लियर? नोट करके लिखो, द पीरियड यूज्ड इन इंडेक्स नंबर, द पीरियड यूज्ड इन इंडेक्स नंबर can be a day, a week, can be a day, a week, a month, a year, etc. However, we shall consider a year for our study. We shall consider a year for our study of index number. Clear? Chalo, and the last point, then we start with formulation and discussion. Notations. तो सबसे पहले आएगा P0. Write it like this. तो इसका मतलब होता है प्राइस ऑफ बेस ईयर. 0 आया तो बेस ईयर. तो दिस इज प्राइस ऑफ बेस ईयर या बेस पीरियड, वॉट एवर. फिर P1 or you can say Pn. So that is price of current year. फिर आएगा Q0. Q मतलब क्वांटिटी, तो यू राइट इट एज क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर. तो ऑब्वियसली नेक्स्ट होएगा Q1 और Qn. That is quantity of current year. Quantity of current year. Is that clear? Fifth, P01.
Now this is called price index number. For current year with respect to base year. Price index number for current year with respect to base year. फिर 6 होएगा Q01. तो Q मतलब क्वांटिटी, तो लिखो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फॉर करंट ईयर with respect to base year. For current year with respect to base year. फिर नेक्स्ट 7th आएगा कैपिटल V01. कैपिटल V01. तो दैट इज वैल्यू इंडेक्स नंबर. वैल्यू इंडेक्स नंबर फॉर करंट ईयर with respect to base year. Value index number with respect to current year, sorry, value index number for current year with respect to base year. Clear? अभी नेक्स्ट लाइन में P01, Q01, V01, ये सबका मतलब होता है 1 on 0. 1 मतलब करंट ऑन बेस. ये ऐसा लिख के रखो, ये है ना ऑब्जेक्टिव्स में काम आएगा. 01 का मतलब 1 on 0. लेकिन अगर 1-0 दिया रहेगा तो उल्टा हो जाएगा, 0 on 1 हो जाएगा. मतलब वो लोग तुमको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा देगा, P10, Q10, V10. तो ये हो जाता है 0 on 1. बेस नहीं, जो भी पहला लिखते हो वो बेस ही होता है. इधर हम लोग ने करंट को 0 दिया है और बेस को 1 दिया है. समझ में आ रहा है? बेस और करंट नहीं हुआ ये बरोबर. 0 और 1 जनरली हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट करता है, लेकिन होता क्या है, व्हेन यू राइट 1-0 तो पहले एक्चुअली हमेशा करंट ऑन बेस ही होता है. लेकिन ये हमारा अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उसको ऐसा लिखता है, बेस ऑन करंट, हमारा अंडरस्टैंडिंग के लिए. इज दैट क्लियर? देखो ये ऑब्जेक्टिव्स में काम आएगा. हाँ, बेस 1 होता है, लेकिन अपना सफिक्स 0 इज बेस एंड करंट इज 1. तो हम लोग यहाँ पे बेस ऑन करंट बोलते हैं, लेकिन होता है ये करंट है और ये बेस है. लेकिन हमको कंफ्यूजन नहीं चाहिए, इसलिए हम ऐसा रख रहे हैं 12 के लिए. फाउंडेशन में अपन अलग लेवल पे बात करते हैं. समझ में आया? चलो क्लियर है ये? ओके. अभी ये जो थियरी लिखा ना, वो हमेशा रीडिंग देने का, बिकॉज ये सब ऑब्जेक्टिव्स में फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू या ट्रू और फॉल्स में आता है. सो यू शुड नॉट लूज मार्क्स इन दैट. इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट वी हैव रिटन, इंडेक्स नंबर बेसिकली होता क्या है? चल पार्थ पढ़, पहला पॉइंट पढ़.
ये है क्या बेसिकली, दिस इज नथिंग बट इट है स्टैटिस्टिकल मेजर, मतलब एक स्टैटिस्टिक्स का मेथड है क्या कैलकुलेट करने के लिए, चेंज कैलकुलेट करने के लिए। तो चेंज किस चीज में, एक वेरिएबल में, साइलेंट पे कर भाई, एक वेरिएबल में चेंज या ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। अभी व्हेन आई से वन वेरिएबल, तो आई कैन से चलो आईफोन का प्राइस, तो मैं उसमें चेंजेस मेजर कर रहा हूं। आईफोन का प्राइस इंडिया में लेगा 15 प्रो मैक्स और दुबई में लेगा, तो फर्क है, यस और नो। तो देर इज लॉट ऑफ डिफरेंस इन प्राइस, तो मैं वो चेंज मेजर कर रहा हूं। मैं तो खाली एक वेरिएबल लिया आईफोन, ऐसा मैं ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स ले रहा हूं कि एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स, तो दैट बिकम्स ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। ऐसा मैं फूड ग्रेन्स में भी देख सकता हूं, व्हीट का प्राइस मेट्रोपॉलिटन सिटीज में और रिमोट इंटीरियर में अलग अलग रहेगा। मतलब आज तुम फूड, बॉम्बे में फूड देखो, होटल में जाओ, एक सादा डोसा मंगाएगा तो भी 100 रुपया हो जाता है, लेकिन वही चीज़ तुम बाहर, बॉम्बे के बाहर इंटीरियर्स में जाओ, विच इज़ कॉल्ड एज 2 टायर 3 टायर सिटी, उधर प्राइस इतना ज़्यादा नहीं रहता है। मतलब विच इज़ द चीपेस्ट सिटी इन टर्म्स ऑफ फूड कंजम्पशन, मालूम है कि नहीं? नहीं, राजस्थान, राजस्थान एंड पंजाब। फूड कंपैरिजन में इट इज़ वेरी चीप, मतलब तुम्हारा फूड पे ज़्यादा खर्चा नहीं होता और पेट भर के खाता भी है पब्लिक, समझ रहा है? तो कंपेरेटिव टू मुंबई, मतलब अगर तुम 10 दिन घूमने जाते हो मुंबई में, तो रोज़ का मिनिमम 1500 से 2000 रुपया एक इंसान का फूड पे हो जाता है। मतलब ऑल मील्स बोलो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर एवरीथिंग, वही 1500 के बदले उधर है ना 1000 रुपये में हो जाएगा या 800 रुपये में हो जाएगा। सो दैट चीपर इट इज़। तो ये चेंजेस हम लोग मेजर करता है स्टैटिस्टिकली, तो उसका मेजर करने का टेक्निक इज इंडेक्स नंबर। इज दैट क्लियर? तो चेंज 3 तरह का होता है जो हमने लिखा है, पढ़ आगे। सेकेंड पॉइंट, करेक्ट, मतलब चेंज मेजर जो करता है वो किस में मेजर करेगा, परसेंटेज में। इसलिए इंडेक्स नंबर का हर फॉर्मूला जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो इनटू 100 आने वाला है। इट इज़ अ परसेंटेज चेंज। मतलब फॉर एग्जांपल आज समझो वीट का प्राइस बॉम्बे में, अच्छा क्वालिटी का जो वीट होता है उसका 1 किलो का 50 रुपया है, तो मे बी 2026 या 27 में वो प्राइस हो जाएगा 1 किलो का 60 रुपया। तो देर इज अ चेंज इन प्राइस, तो मैं प्राइस में चेंज देख रहा हूँ। ऐसा मैं क्वांटिटी में भी चेंज देख सकता हूँ, तो मैं परसेंटेज में चेंज देख रहा हूँ। 50 का हो गया 60, 10 रुपया बढ़ा, 10 रुपया बढ़ा मतलब 20% बढ़ गया, तो दैट इज परसेंटेज चेंज। तो तुमको परसेंटेज चेंज 20% मिलेगा। तो ऐसा मैं एक वेरिएबल का देख रहा हूँ, एक सिटी का देख रहा हूँ, ऐसा मैं पूरा कंट्री का भी देखता हूँ। तो पूरा कंट्री का देखता हूँ तो समझ में आता है कि महंगाई, इन्फ्लेशन हो रहा है या डिफ्लेशन हो रहा है, तो इकोनॉमी इन्फ्लेट हो रहा है या डिफ्लेट हो रहा है, वो सब समझ में आता है। ऑब्वियसली पूरे कंट्री का लेवल करने के लिए देर इज डिफरेंट सिस्टम्स, तो ये बेसिक लेवल है इंडेक्स नंबर। इज दैट क्लियर? इसलिए इसको बोलते हैं इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमी। वो इंडिकेशन देता है कि इकोनॉमी महंगा हो रहा है या रूटीन में जा रहा है या कम गिर रहा है, सब इंडिकेशन देता है वो। अच्छा, ये खाली प्राइस रिलेटेड बात किया, मेरे को प्राइस रिलेशन में कुछ लेना देना ही नहीं है, मैं प्रोड्यूसर है, तो मेरे लिए इंटरेस्ट क्या रहेगा, हाउ मच क्वांटिटी आई प्रोड्यूस लास्ट ईयर, हाउ मच क्वांटिटी आई प्रोड्यूस दिस ईयर। प्रोडक्शन बढ़ा है, आउटपुट बढ़ा है, कंजम्पशन बढ़ा है कि नहीं, वो देखना पड़ता है। मतलब मैं खाली प्रोड्यूस करते रहेगा, बिकेगा ही नहीं, तो फायदा क्या है? इज दैट क्लियर? तो अगर बिक रहा है मतलब मेरा कंजम्पशन हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है मतलब डिमांड है, डिमांड है मतलब प्राइस बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन हो रहा है, सप्लाई भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इट गोज दैट वे, सब इंटरकनेक्टेड है, जो तुमने इको में पढ़ा रहेगा। इज दैट क्लियर? लॉ ऑफ डिमांड। सो ये सब इंडेक्स नंबर तुमको इंडिकेट करता है। तो या तो तुम प्राइस कंपेयर करो, या तो क्वांटिटी कंज्यूम प्रोड्यूस जो भी है वो कंपेयर करो, या दोनों कंपेयर करो। एंड दोनों करते हैं तो उसको वैल्यू बोलते हैं। तो देर आर 3 टाइप्स ओनली, प्राइस में चेंज, क्वांटिटी में चेंज या वैल्यू में चेंज।
इज दैट क्लियर? पढ़ आगे, मतलब प्राइस को कंपेयर किया तो पता चलता है महंगाई है कि नहीं है। अच्छा, अभी प्राइस इन्फ्लेशन में करंट पीरियड का प्राइस विद रिस्पेक्ट टू बेस पीरियड, अभी बेस पीरियड इमीडिएट प्रीवियस ईयर भी हो सकता है, 5 साल पहले भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। इट इज चॉइस ऑफ द पीपल हु वांट टू डू द कैलकुलेशन। मतलब आज मैं देखूँ तुम्हारा 12th का फीस है, जो भी रहेगा 4 सब्जेक्ट का फीस लेटेस्ट से 25,000 है, तो ये प्रीवियस ईयर कितना था, उसके पहले साल कितना था, या 5 साल पहले कितना होता था, वो मैं कंपेयर कर सकता है, तो मुझे समझ में आएगा कि ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर? इन्फ्लेशन है कि नहीं है। मे बी तुम्हारा भाई लेटेस्ट से 3 साल छोटा है, 3 साल बाद 12th का फीस क्या होएगा, तो तुम कंपेयर क्या करेगा, साला मैंने तो 25,000 में किया था, तेरे वक्त 50,000 हो गया है, तो इन्फ्लेशन हो गया। तो यू आर कंपेयरिंग 2028 with the price of 2025. So 2028 becomes your current year, 2025 becomes your base year. Is that clear? तो जब भी तुम ये कंपैरिजन करते हो प्राइस का, दैट इज कॉल्ड प्राइस इंडेक्स नंबर। इज दैट क्लियर? सेम वे नेक्स्ट देख, तो क्वांटिटी में आज कितना प्रोड्यूस किया है, 5 साल पहले कितना था, 2 साल पहले कितना था, वो सब मैं देख रहा हूँ। तो अगर मैंने बढ़ा दिया है तो ऑब्वियसली आई एम ग्रोइंग, माई आउटपुट इज ग्रोइंग, दैट इज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी में चेंजेस देख रहे हैं हम लोग। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, हाँ रुक जा, वो अंडरलाइन कर, टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी। मतलब कभी भी वैल्यू वर्ड आया ना तो समझ जाने का वो दोनों का क्या ले रहा है, प्रोडक्ट ले रहा है, प्राइस एंड क्वांटिटी का। क्यों? क्योंकि 100 से कंपैरिजन, परसेंटेज में कंपैरिजन हो रहा है, कुछ भी मालूम नहीं है तो बेस ईयर को 100 लेके करने का। इज दैट क्लियर? सिमिलरली ये टर्मिनोलॉजी बेस पीरियड मतलब जहाँ से मेरे को कंपेयर करना है, तो इट कैन बी 2020, इट कैन बी 2015, जो भी ईयर से मैं कंपेयर कर रहा हूँ वो ईयर बेस पीरियड हो गया। इज दैट क्लियर? फिर करेक्ट, कभी कभी 1 यूज़ करता है, कभी कभी n यूज़ करता है। अगर मुझे 2025 के लिए कंपैरिजन करना है तो 2025 बिकम्स माय करंट पीरियड। इज दैट क्लियर? इट इज अ पीरियड फॉर विच कंपैरिजंस आर बीइंग मेड। क्लियर? दैट इज करंट पीरियड। पढ़ आगे करेगा, हम लोग जब तक स्पेसिफाई नहीं करेगा वी हैव टू अज्यूम इट एज ईयर। क्लियर? पढ़ आगे। P01, अच्छा नोटेशन है, सॉरी, हाँ ये सब नोटेशंस है, 3 टाइप का इंडेक्स नंबर। क्लियर? फाइन। अभी लिखो, गिव द हेडिंग एज मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। तो पहला मेथड आएगा सिंपल एग्रीगेट मेथड, सेकेंड आएगा वेटेड एग्रीगेट मेथड। 2 मेथड है, अपने को 2 मेथड पढ़ना है और 3 एक्सरसाइज है उसके लिए। चलो, वी फर्स्ट एक्सटेंड दिस एज सिंपल एग्रीगेट मेथड को एक्सटेंड करेंगे। पहला आएगा प्राइस इंडेक्स नंबर, P01 is equal to summation of P1 upon summation of P0 into 100. Quantity index number, so that is Q01. So summation of Q1 upon summation of Q0 into 100. Clear? And third आएगा value index number.
V01। चलो वैल्यू मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी ना, तो P1Q1 अपॉन समेशन P0Q0 इंटू 100। अच्छा ये कौन सा मेथड है? मेथड का नाम क्या है? सिंपल एग्रीगेट मेथड। एग्रीगेट का मतलब टोटल, बराबर। तो प्राइस इंडेक्स नंबर में देखो फॉर्मूला क्या है, लॉजिकल एकदम, टोटल ऑफ P1। P1 मतलब P1 किसका नोटेशन है? प्राइस ऑफ करंट पीरियड। तो जो भी करंट पीरियड है वो सबका प्राइस क्या करने का? टोटल करने का। फिर समेशन P0 मतलब P0 किसका नोटेशन है? बेस ईयर। तो जो भी बेस ईयर का प्राइस है उसका टोटल करो, फॉर्मूला में डालो, कैलकुलेशन करो। परसेंटेज है इसलिए इंटू 100। इज दैट क्लियर? समझ रहा है? तो वो लोग तुमको बोलेगा कि बेस ईयर ये है, करंट ईयर ये है, और इसमें सिंपल एग्रीगेट मेथड से प्राइस इंडेक्स नंबर करो, सब बोलेगा वो तुमको सिर्फ टेबल बना के टोटल करके कैलकुलेट करना है। सेम वे क्वांटिटी एंड सेम वे वैल्यू। इज दैट क्लियर? श्योर? तो 3-3 मार्क का क्वेश्चन है, ध्यान से करो। कम टू योर पेज नंबर 90। पेज 90, क्लास वर्क 1। चल पढ़, पार्ट मेन क्वेश्चन पढ़। कौन सा मेथड बोला है? सिंपल एग्रीगेट मेथड। वो भी कौन सा? प्राइस इंडेक्स नंबर के कौन सा? करेक्ट। तो करो, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़, क्या क्या दिया है। हाँ लेकिन उसके ऊपर देख बोला है यूज 1995 एज बेस ईयर। समझो ये नहीं दिया होता तो भी तुम्हारे हिसाब से अज्यूम करो कि 95 और 2000 में बेस ईयर कौन सा रहेगा? 95। जो भी ओल्डेस्ट ईयर रहेगा वो बेस ईयर, जो भी नया ईयर रहेगा वो करंट ईयर, अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है तो तुम भी सेम कॉलम्स बनाएगा। सबसे पहला बनेगा कमोडिटी, फिर कॉलम बनेगा प्राइस इन रुपीज इन 1995, इसको ब्रैकेट में तुम देगा P0 क्योंकि बेस ईयर है। फिर प्राइस इन रुपीज इन 2000, इसको ब्रैकेट में देगा तुम P1। करेक्ट? बनाओ टेबल जैसा दिया वैसा। कमोडिटी में PQRST, this is 15, 20, 24, 22, 28, 27, 38, 32, 40, 45। मारो टोटल, मारो इसका। $109 आया P0 का टोटल। वन 82 ना, चेक करो 182 आ रहा है।
चलो तो टेबल के नीचे तुम लिखेगा समेशन P0 इज 109, समेशन P1 इज 182. हुआ? अभी डायलॉग मारेगा, प्रेजेंटेशन में ऐसा होना चाहिए. व्हाट इज द डायलॉग? बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड. फिर फॉर्मूला डालने का P01 समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100. सब्सटीट्यूट करो. 182 upon 109 into 100. तो ये 18,200 अपॉन 109. अभी सीधा ऐसा डिवाइड करो. 3 डेसिमल करने का, दूसरा राउंड अप करने का, तो 3 डेसिमल तक जाना पड़ेगा. 18,200. चलो डिवाइड करो. लिटरली डिवाइड करने का, इसमें थोड़ा टाइम देने का. कितना आ रहा है? तीन करने का, 2 राउंड, दूसरा राउंड अप करने का. नाइन 7 और तीसरा डेसिमल. तीसरा करेगा ना डेसिमल. टू 70 है, मतलब 2 आएगा ना. तो दिस इज 166.972. तो नेक्स्ट लाइन में यू विल राइट अप्रॉक्सीमेट का साइन डालने का. ऐसा 166.97, 2 डेसिमल राउंड अप कर रहा है. क्लियर? चलो समझ में आया ये सबको? करो ऐसा सेम सेकंड. 3 मार्क का क्वेश्चन है, मार्क्स जाना नहीं चाहिए इसमें. तो 43,900 अपॉन 316, 138 पॉइंट. तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 138.92. करो थर्ड, करो, स्टार्ट डूइंग थर्ड.
हाँ हाँ 7 तक ऐसे ही जाएगा. आया पार्थ. मानसी मिला. कन्नड़ समझाना कैसे करने का है. बनाओ. थर्ड में भी कमोडिटी यूनिट दोनों कॉलम सेम 4 कॉलम बनेगा एज इट इज. खाली टोटल करने का अपने को. टू 43 P0 का टोटल. व्हाट अबाउट P1 313. कैल्सी यूज मत करे. हाथ से कर. उधर बोर्ड एग्जाम में कैल्सी नहीं आने वाला है. टाइम लगेगा चलेगा लेकिन हाथ से कर. 816 चेक करो. 6 आ रहा है क्या बरोबर से. बरोबर है. 128.806 है विच इज राउंडेड अप एज 128.81. बोलो फोर्थ वन. वन 13315 मिला सबको ये टोटल. कर दो कैलकुलेशन आराम से. टाइम देने का कैलकुलेशन में मार्क्स जाना नहीं चाहिए इसमें. So that will be rounded up as 171.59. Summation P0 कितना 366. इसको 2 से रेड्यूस करो. इसको तुमको रेड्यूस करना है तो कर सकते हो. 234 और 183 फिर डिवाइड करो. वन 127 पॉइंट. करो 667. इसमें मार्क्स नहीं जाना चाहिए. बोनस मार्क्स है ये सब. खाली कैलकुलेशन ध्यान से करने का.